You people remember the twofold effects of a transaction? कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम करते थे तो उसकी हमने एक डेबिट इफेक्ट दी है और एक हमने क्रेडिट इफेक्ट दी है. Now the chapter accounting equation is a advanced level chapter because in part 2 we'll be doing a chapter named final accounts. उसमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन या तो हम इसको कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन, वो वाला चैप्टर तब तुम्हें ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा. अब उस चैप्टर का थोड़ा हिंट हमें इस चैप्टर में देखना है कि हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया है. असेट इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल प्लस लायबिलिटी. नाउ एज वी नो कि in each and every transaction how many effects do we give? Two. Which effect? One is a debit effect, the other is a credit effect. One is a debit effect and the other is a credit effect. In all the transaction we give one debit, one credit effect. So in all transaction we also need to prove this accounting equation कि asset which is LHS, the left hand side, will be equal to that is the right hand side. Now what are possible outcomes we need to see in a transaction which will make this equation always equal? We are writing down few rules. हम क्या कर रहे हैं अभी? थोड़े rules हम लिख ले रहे हैं ये accounting equation को solve करने के. वो rules क्या है जरा समझो. पहला rule, कोई भी ट्रांजैक्शन जब आएगा तब ऐसा शायद हो सकता है asset will increase and यहाँ से capital would increase, liability will remain same. तो देखो LHS is equal to RHS, can I say? In few transactions what will happen? Asset will decrease and a capital will also decrease. Can I say LHS is equal to RHS? In few transaction what will happen? Asset is gonna increase, capital को कुछ भी नहीं होगा, liabilities will be increasing. Then in few transaction what will happen? Asset will decrease, liabilities will also decrease. तो देखो जो एरोज में कर रहा हूं वो देखो ऐसे सेम जा रहे हैं, तभी वो कैसा जा रहा है? इक्वल. Are you getting it? Are you getting it? Now we need to understand in a transaction what all situation can come, and out of this rule we'll able to do 95% of the transaction. जो भी मैं तुमको 5 रूल लिखवा रहा हूँ ना, उसमें हम कितने ट्रांजैक्शन सॉल्व कर पाएंगे? 95%. बाकी ना 5 एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस है. કેવા છે? જે આ રૂલ થી થોડા બહાર જઈને આવશે પણ આપણે જોઈ લેશું. પણ મેજોરિટી તો આ રૂલ માં કવર થઈ ગયા. એટલે આપણે કરવાનું શું છે? આ અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન ને મારે પ્રૂફ કરવાનું ઓલવેઝ in all the transactions. શું પ્રૂફ કરવાનું છે? asset is equal to capital plus liability. What I need to prove? Asset is equal to. Now how do we prove it? What all situation can come? Now looking at the transaction, what can happen? An asset will increase and simultaneously capital increase. तो देखो दोनों इक्वल हो गए. Asset decrease, the capital भी देखो दोनों इक्वल हो गए. Asset capital sorry liability दोनों इक्वल हो गए. तो ये हम चांसेस लिख रहे हैं, रूल लिख रहे हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी तुमको देखने को मिलेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन, असेट बढ़ेगा ने असेट ही कम होगा. अब असेट बढ़ा ने असेट कम हुआ मतलब इट्स नील इफेक्ट. एंड लायबिलिटीज અને કેપિટલ માં પણ કઈ નહીં થાય, ખાલી અહીંયા થશે અસેટ વધ્યું અને અસેટ डिक्रीज हुआ. ये हमने पॉसिबिलिटी लिखी है कि ऐसा होगा. तो ये इक्वेशन कैसा होगा? इक्वल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस. फॉर इसमें तुम्हारे 95% ऑफ द ट्रांजैक्शन ये रूल में कवर हो जाएंगे. बाकी के 5 कैसे हैं? 5% एक्सेप्शनल, वो हम बाद में देखेंगे, जब आएगा तब वो हम उठाएंगे. ठीक है, तो ये रूल लिख लो. चलो पहले फटाफट अपने नोटबुक में ये रूल लिख लो.
कि अकाउंटिंग इक्वेशन में LHS इज इक्वल टू RHS कब होगा? LHS विल बी इक्वल टू RHS कब होगा? जरा लिख लेंगे फटाफट। फिर हम जब अभी सम करेंगे तब इन रूल की तरफ वापस हम जाएंगे। ये रूल की तरफ हम वापस थोड़ा जाएंगे। डू यू गेटिंग दैट? आर यू गेटिंग दैट? અને પછી આપણે જોઈશું, બરાબર? अच्छा बेटा, ऐसा कभी हो सकता है? जरा देखो तो, असेट इंक्रीज ने कैपिटल डिक्रीज, असेट इंक्रीज ने कैपिटल डिक्रीज, ऐसा हो सकता है? बेटा असेट इंक्रीज અને कैपिटल डिक्रीज ऐसा हो सकता है? बताओ कैसे? अगर असेट बढ़ेगा ना कैपिटल कम होगा तो विल इट बी इक्वल टू? नो, तो ऐसा चांस कम है, हो नहीं सकता ज्यादा। असेट बढ़ेगा कैपिटल कम हो तो इक्वल कहां हुआ? इम्बैलेंस हो गया ना ये तो इक्वल कैसे हो रहा है वो भी जरा समझना। અહીં અસેટ વધ્યું તો કેપિટલ પણ વધ્યું, असेट कम हुआ तो कैपिटल भी कम हो रहा है, तो ही वो इक्वल होंगे ना। तो इक्वल कैसे होगा? एक बढ़ा नहीं एक कम हुआ, सो इक्वल हुआ नहीं। तो वो जरा बुद्धि चलाना, वो जरा बुद्धि चलाना जब हम सम सॉल्व कर रहे हैं तब। शुरू करें सम्स। अब देखो सम जो हमें स्टार्ट करने हैं उसके लिए ऐसा तुम्हारा पेज अपने को चाहिए, ऐसा लेफ्ट पेज और राइट पेज, ऐसा अपने को बुक का पेज चाहिए टू सॉल्व द सम। आर यू गेटिंग इट? तुम्हारे लेफ्ट पेज पे क्या आएगा वो पहले लिखो। बेटा what information will be there on the left page? वो लिखेंगे, चलो। The information on the left page लिखा जाए serial number, journal entry, debit, credit, effect, આટલું તમારે લખવાનું on the left side of your page। इतना तुम्हें लिखना है on the left side of your page, okay? बेटा right side of your page asset that's equal to capital plus liabilities। ये पूरा तुम्हारा राइट पेज में आएगा जिसमें असेट का कॉलम अ बिट लॉन्गर, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तीन खाली तुम्हारे राइट पेज पर जाएंगे। श्योर है क्या क्या चीजें हमने करी? अब ये वाला जो तुमने फॉर्मेट बनाया ना, लेफ्ट पेज राइट पेज, इसका एक और फॉर्मेट बना लो इन द नेक्स्ट पेज, एक बार और, ताकि when we are doing the sum we don't stop for making the format, we complete the format at once। એટલે મને આ ફોર્મેટ બે વાર બનાવેલું જોઈએ। ચાલુ કરો, મને આ ફોર્મેટ બે વાર બનાવેલું જોઈએ, ચાલુ કરો।
स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं? बड़ा फटाफट चले जाओ पेज नंबर 125, पेज नंबर 125. Beta, the two-page format, is it drawn by you people? Yes. Beta, the two-page format, is it drawn by you people? Yes. That's great. Let's start. Read the first transaction. I want you to raise your hand and give me the journal entry. Raise your hand. Commenced business with capital of 80,000. I want you to raise your hand. Bhatia. Capital to cash to capital. Cash account debit to capital. Please write down the entry. That's the correct entry. Cash account debit to capital account. But how much is the amount? 80,000. 80,000. Cash account debit to capital account. 80,000. 80,000. Now, इफेक्ट में समझो क्या हमें लिखना है. इफेक्ट में कहना से कैश अकाउंट डेबिट मतलब ओनर बिजनेस में कैश लेके आया, सो मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा और साथ साथ ये जो कैपिटल आया तो कहना से बिजनेस में कैपिटल भी, सो इफेक्ट में लिखो. इफेक्ट में कैश इंक्रीजेस and capital also increases. Cash increases and capital increases. Now tell me, cash यहां पर जो मैंने लिखा cash increases, बुद्धि चलाओ, वो मेरा असेट है, कैपिटल है कि लायबिलिटी है? कैश असेट है. तुमने यहाँ क्या लिखा? कैश इंक्रीज. मतलब असेट साइड हम लिख देंगे कि भाई मेरा कैश बैलेंस 60,000 का है. I'm sorry, 80,000 का है. Yes or no? Yes. એટલે અહીંયા આની ઇફેક્ટ में આ બાજુ આપી દીધી. અહીંયા એના પર ટિક મૂકી દેવાનું कि कैश इंक्रीजेस, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर तुम्हें टिक दे देने का कि इसकी इफेक्ट मैंने राइट साइड दे दी. अब क्या लेना बाकी है? कैपिटल. नाउ यूज योर कॉमन सेंस. वो कहां लिखो? असेट में, कैपिटल में, लायबिलिटी में? कैपिटल. सो कैपिटल भी मेरा कितना हुआ? 80,000. बेटा चेक पॉइंट. चेक पॉइंट. असेट में कितने हैं? Is it equal to capital plus liability? Yes. क्या से liability में कुछ भी नहीं आया? So asset में 80 है, capital में कितना है? 80. तो क्या LHS is equal to RHS? Yes. 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 Confirm? Yes. ऐसा confirm हो, so अपने को यहाँ पर ये line draw कर देने की. Once we confirm કે ભાઈ આ ટ્રાન્ઝેક્શન માં આપણે પ્રૂફ કરી દીધું. શું પ્રૂફ કર્યું? LHS is equal to, we draw a line. We draw a line. बेटा આ રાઈટ સાઈડ પર ઇફેક્ટ જે દેવાની છે ને, રાઈટ સાઈડ પર, કે આ કોલમ પર રો ડિપેન્ડ કરે છે. જો मैं कैपिटल લખી કાઢ્યું मेरी बाजू, सो मैं यहाँ पर कैपिटल पर भी टिक कर दूंगा. ये कैपिटल भी मैंने यहाँ पर राइट साइड पे लिख दिया. પછી જ ગાડું આગળ વધારવાનું. અને ગાડી આગે बढ़ेगी कैसे? हम प्रूफ करेंगे LHS is equal to RHS. Then only we move to the second transaction. Start reading. Come on, second transaction. Start reading. 20,000 is deposited with the bank. 20,000 is deposited with the bank. I want journal entry.
Last bench. Bank account debit to cash account. Bank account debit to Cash account. in and out. Please write. Bank account debit to cash account. How much is amount? 20,000. Now, madam, after writing the entry, use your common sense. What will be the effect? What will be the effect? Bank balance बढ़ेगा, cash balance will decrease. तो लिखा जाए, bank balance is gonna increase and cash balance is gonna decrease. Bank balance is gonna increase and cash balance is gonna decrease. Now beta, here from this transaction our life will be in trouble. Why it will be in trouble? Because whatever the things we wrote it in the first transaction, we need to carry them forward in the second. Whatever we write in the second transaction, we carry forward them to third transaction. जो फोर्थ हम लिखेंगे, मतलब ये जो तुम्हारा पाप का घड़ा है वो हर ट्रांजैक्शन में भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते ही जा रहा है, हटेगा नहीं, भरते ही जा रहा है, because LHS is equal to RHS. तो अब ये कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है बेटा, यहाँ जरा ध्यान से कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है. मैंने यहाँ लिखा बैंक बैलेंस इंक्रीज. नाउ कॉमन सेंस लगाना, असेट में लिखो, कैपिटल में लिखो, लायबिलिटी में. बैंक बैलेंस पक्का पक्का. अच्छा, पहले वाले ट्रांजैक्शन में है कोई बैंक बैलेंस? એટલે મારે નવે સરથી લખવું પડશે. હું કહો છો? सो मेरा यहाँ पर बैंक बैलेंस मैंने लिखा असेट साइड 20,000. आई पुट अ टिक કે ભાઈ આની આપણે ઇફેક્ટ આપી દીધી. પછી આ શું કહે છે? कैश बैलेंस डिक्रीज. जरा पहले वाले ट्रांजैक्शन में देखो, कैश बैलेंस कहीं पर लिखा है मैंने? कहाँ लिखा है? असेट में लिखा है. मतलब दूसरी इफेक्ट भी कहाँ जाने वाली है? असेट. तो दिखाने का कैसे? मेरा कैश बैलेंस पहले कितना था? उसमें से मैंने डिपॉजिट कर दिया कहां पर? बैंक में. कितने? सो वो मैंने माइनस कर दिए, तो यहाँ कितना बचेगा? शिशी. सो 20 प्लस 60 इज 80,000. तो असेट में हमारा कितना देखाय છે? 80,000. जरा ध्यान दो, मतलब ये वाला हो गया, इस पे मैंने टिक मार दिया. अब ये वाला कैपिटल में देखो कुछ फर्क पड़ा ये ट्रांजैक्शन की वजह से? कैन आई से आई विल कैरी इट फॉरवर्ड एज लायबिलिटी nil. कंफर्म करो. LHS is equal to RHS? Yes. LHS is equal to RHS? Yes. कैसे? असेट में 80,000 है, कैपिटल में 80,000 है, तो is it LHS equal to RHS? आंसर अगर यस आवे तो कब શું કરવાનું? સર અગર આન્સર યસ આવે તો લાઈન મારવાનું બંધ કરી દેશે. એન્ડ લાઈન મારવાની. बेटा ये तुम्हारा पाप का पोटला लेके जो चलना है वो समझ में आ रहा है? That's the only part where students feel confused. क्या શું થઈ રહ્યું છે યાર? અમારો પાસ્ટ કેમ નડી રહ્યો છે મારા ભવિષ્યમાં? એ કેરી ફોરવર્ડ જે થઈ રહ્યો છે, that's the only thing which will harass you. બાકી રેસ્ટ તો ઈઝી છે. શું કહો છો યાર? જર્નલ એન્ટ્રી ના લખતા આવડે? પછી આ જર્નલ એન્ટ્રી જોઈને ઇફેક્ટ ના આવડે? બસ નહીં લખવાનું ખાલી થોડું અઘરું છે, એ હું છું. But read the third transaction. Come on, read the third one. I want journal entry. Raise your hand. Goods of 40,000 is purchased from Himani. Amisha. Purchase account debit to पक्का? लिखा जाए. Purchase account debit to. अभी बहुत मजा आने वाला है, जरा खाली एंट्री लिखो ना. अमाउंट है 40,000.
40,000. Purchase account debit to Himani 40,000. अच्छा, हिमानी से हमने ये सामान परचेस किया है, तो जरा मुझे ये बताओ, हिमानी मेरी डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर वाले, हिमानी अपनी क्रेडिटर है। डेटर सर, हिमानी मेरी सिस्टर है। बेटा, जो लोग डेटर बोल रहे हैं ना, जो लोग डेटर में जिन्होंने हाथ ऊपर करा है, ट्रस्ट मी, 14 तारीख से जो एग्जाम होने वाली है ना, कट जाएगा। बेटा, ये सामान मैंने हिमानी से परचेस करा है, तो पैसे देने पड़ेंगे। तो शी इज माइन, and but you are not the only batch. The batch gone before you, they also said sir debtor છે, debtor। मैं તમને લાસ્ટ વાર કીધું છે, ડેટર ને આપણે ડેબિટ કરતા હોઈએ, ક્રેડિટર ને આપણે અહીંયા હિમાની ક્રેડિટ થઈ છે। સર હવે ખબર પડી, બોલો। अच्छा, तुम अगर गुड्स परचेस कर रहे हो तो बिजनेस में गुड्स आए कि गए? आए। So can I write goods increases? And can I say हिमानी को हमें क्रेडिटर है वो, तो मुझे उसको पैसे So can I say अगर वो मुझे पैसे दे रहे हैं, it's my liability? Yes. So it's my liability increase. गुड्स आए तो गुड्स की वैल्यू बढ़ी, गुड्स इंक्रीजेस, एंड हिमानी को मुझे पैसे देने हैं, so liability increases. Yes or no? Yes or no? Yes. Now how to show this effects on the right side? Pay attention. Goods increases. Tell me, goods, asset, capital, liability? Asset. तो जरा देखो, अगला पिछला कोई गुड्स है यहाँ पर? तो आपने को अलग से लिखना पड़ेगा। तो कहना से जो पहले पुराने वाले हैं उनको ले लेते हैं, बैंक बैलेंस में फर्क पड़ा तो जो 20,000 थे कैरी फॉरवर्ड हो गए। मैं बोलूं ना यार, रोकड़ा कितना था? रोकड़ा अबे तेरी 80 60 है, 60 ना लोगों ने भाई गैस। अने गुड्स कितने आए? गुड्स so 40। तो बेटा गुड्स पे अपने को टिक रख देने का कि वो अपने राइट साइड लिख दिया। टोटल कितना बैठ रहा है? 1,20,000। ओके। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा है, देखो क्या, लायबिलिटी इंक्रीज। सो मेरे को वो किधर लिखने का? सो लायबिलिटी में बेटा हिमानी का नाम लिखो, because she is my creditor, I need to pay it to her, so we need to write her name। and now ऊपर वालों कैपिटल में कोई चेंज आयो तो कहना से वो 80,000 as तो बेटा लायबिलिटी इंक्रीज भी मैंने वहां पर इफेक्ट दे दी। बेटा जरा कंफर्म मारो, LHS इक्वल टू RHS हुआ? नहीं। सर मेरे को इधर एक 20 दिख रहा है, इधर खाली 80 है। बेटा वो प्लस लायबिलिटी भी कर लेंगे ना, ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी है भाटिया। सो 80 प्लस 40 120। अरे आगे ना, बेटा कंफर्म हुआ LHS इक्वल टू RHS? कैन आई ड्रॉ द लाइन? सर फोर्थ मारे ट्राई करो छे। हाँ लिख ले सूर्यवंश। बेटा फोर्थ वन यू कैन स्टार्ट द ट्राइंग पार्ट। बेटा कॉमन सेंस
वाला चैप्टर है, अगर जर्नल एंट्री आवड़े तो। सर उसमें मैं फादर हूँ, आप चिंता मत करो, जर्नल एंट्री में मैं फादर हूँ। बेटा anybody trying के waiting for me? You're trying? Yes. Now है। Okay, beta. Let's start. Beta, let's start the fourth one. We are purchasing goods for cash. Raise your hand. Vishweshwar. Purchase account debit to लिखा जाए. Purchase account debit to cash account. How much is the amount? 30,000. Okay. So if I say purchase account debit to cash 30,000, if you have purchased, so goods are coming. Can I say goods are coming? So can I write goods increases? और तुमने ये गुड्स खरीदने के लिए क्या दिया? तुमने ये गुड्स खरीदने के लिए क्या दिया? So cash decreases. Cash decreases. बहुत बढ़िया. Cash decreases. Now the effect which I need to give it to the right side, goods increases. तो जरा previous balance देखो, वहां पर कुछ goods हैं? कितने हैं goods मेरे पास? कहना से उसमें और 30,000 ऐड होंगे because हमने वो सामान परचेज करा है। तो बैंक बैलेंस का क्या करूं? कहना से I need to write it as it is. 20,000 it will be as it is the same. अच्छा कैश बैलेंस यहाँ पर क्या लिखा मैंने? So कैश बैलेंस कितना था मेरे पास? 60,000. उसमें से हमने परचेज कितना करा? So अब मेरे पास खाली 30,000 कैश बचे और जो गुड्स थे तुम्हारे पास 40,000 के, उसमें तुमने और परचेज किया 30,000. सो तुम्हारे पास गुड्स हो गए टोटल 70,000 के. तो 70 प्लस 30 प्लस 20 करो तो वापस 1,20,000. और बेटा इन दोनों की पोस्टिंग हो गई, देखो जरा चेक करो. तो जो पुराना कैपिटल था कैन आई से एज इट इज, पुरानी जो लायबिलिटी थी हिमानी की वो भी एज इट इज. कंफर्म LH is equal to RHS? Yes. LH is equal to RHS? Yes. Draw line. Draw the line, come on. But I just want to know, for my knowledge, how many of you could do this? You tried and you could do this. LH is equal to RHS किसने प्रूव कर दिया था? चलो बहुत बढ़िया. I'm waiting because बेटा 5th and 6th both are very important transaction. Mark it up.
The fifth transaction and the sixth transaction, both are very important. Both I would be doing it with you. Both. ખાલી બેટા આટલું પતાઈ દો. Fourth સુધી પતાઈ દો. बेटा स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं? फिफ्थ वाला जरा पढ़ेंगे. गुड्स ऑफ 35,000 I am selling it for how much? 35,000 के गुड्स मैंने 55 में बेच दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द जर्नल एंट्री. रेज योर हैंड. 35,000 के गुड्स 55 में मैंने सेल करे. अनिकेत, जसलीन अकाउंट डेबिट टू. देखो 35,000 के गुड्स 55 में हमने जसलीन को बेचे. एंट्री एंट्री क्या थी? अनिकेत एंट्री बेटा अमाउंट 55. बेटा हमने भी 55. वेरी गुड, लिखो सही है 55. तो सर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? वेट करो मैं आ रहा हूं उस पे. जसलीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जसलीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 55,000. सुनो, ऑन क्रेडिट એટલે ઉધાર પર સામાન વેચ્યું લે. सूर्यवंशम खत्म होने आया. जसलीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब यहां जरा ध्यान, एक डाउट पैदा हो रहा है. बेटा ये जस्सी कौन सी लस्सी है? डेटर है कि क्रेडिटर? डेटर के क्रेडिटर? क्रेडिटर कोई नहीं, कोई नहीं. डेटर डेटर. वेरी गुड, शी इज माय डेटर. क्यों? सामान उसको मैंने क्रेडिट पर बेचा है. सामान उसे क्रेडिट पर बेचा है, इसलिए उससे पैसे. So can I say my debtor has increased? Yes or no? अब मैंने सामान उसको बेचा है तो गुड्स आले के गेले. So can I say goods decreases? अपना गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं. बट यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, 35 के गुड्स 55 में बेचे हैं. बेटा प्रॉफिट करा के लॉस? कितने का? तो कैन आई राइट यहां पर मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट कि अपना प्रॉफिट भी बढ़ रहा है. लिखो लिखो. बेटा एंट्री पता चली? अरे पक्का रे. जसलीन टू सेल्स. जसलीन कौन है बेटा अपनी? जसलीन कौन है? डेटा. अब बेटा इसकी इफेक्ट यहां पर असेट इक्वेशन में कैसे आएगी? बेटा तुम मत कॉपी करो, पहले देख लो, समझ लो. यहां पर ऐसा लिखा है डेटर इंक्रीजेस. So debtor asset capital के liability debtor asset में जाएगा पक्का. So मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जसलीन और उसकी अमाउंट कितनी है? 55,000. फिर जरा देखो मेरा बैंक बैलेंस कुछ फर्क पड़ा है? As it is. बैंक बैलेंस as it is 20,000. कैश कुछ फर्क पड़ा? कितना है कैश? So 30,000 I write it as goods. कितने है मेरे? उसको कुछ फर्क पड़ा? गुड्स सेल किए है ना, तो गुड्स.
सो डेटर इंक्रीज दिखा दिया, गुड्स आर डिक्रीजिंग। तो मेरे गुड्स टोटल है 70,000 के, कितने गए? कितने गए? 35 के गए हैं बेटा। 35 के गुड्स मैंने 55 में बेचे, तो एक्चुअली गुड्स गए कितने? 35। तो यहां से तुमने सोल्ड करे गुड्स 35 के, तो बसे कितने? बसे कितने? 35। तो गुड्स डिक्रीजेस भी बता दिया, टोटल मानो जो है 1,40,000, 1,40,000। अब यहां पर ऐसा भी लिखा है प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज। अच्छा, बिजनेस में अगर कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो उस पे किसका हक है? उस पे किसका हक है? ओनर का, ओनर का। उस पे हक किसका? और ओनर को हमने किस रूप में बताया है? ओनर को हमने किस रूप में बताया है? सो व्हेन आई राइट प्रॉफिट इंक्रीजेस, मेरा कैपिटल भी इंक्रीज होगा। सो मेरे कैपिटल टोटल 80,000 है, इसमें प्रॉफिट में ऐड करूंगा कितना? सो ये 1 लाख हो जाएगा। ने बेटा हिमानी आंटी तो जोड़े जोड़े छेज कितना छे हिमानी आंटी ना 40। बेटा चेक्स करो, 140, 1 लाख यानी 40 सेम। सो प्रॉफिट की भी इफेक्ट हमने वहां पर दे दी। सर एग्जाम में आटला बधा ट्रांजैक्शन पूछसे? बिल्कुल नहीं। They will ask you only 4 to 5 transaction बस। पर मारे तो બધા કરાવવાના ને, કેમ કે પછી નીચેના ટ્રાન્ઝેક્શન માંથી કોઈ પૂછી લીધું તો તું તો રડી પડીશ કે મેં કરાયું નતું, એટલે મને આવડ્યું નહીં। એટલે મારે તો બધા જ કરાવવાના છે, અને પણ આજે જ કરાવવાના છે। તો क्या फर्क पड़ता है 8 बजे बैठे 8:30 बजे तक बैठे, क्या Oh, I forgot, sir. Abdul Kaka waiting for us. बेटा 6th वाला जो इसके जैसा ये ट्राई करोगे, पची 7 and 8, they are the last one for today transactions. 7th and 8th are the last one for today's transaction. But what? 6th one you do it, come on your own. Similar types. 10,000 के गुड्स कितने में बेचे? 18,000 for cash. Better please try. the bodies, the readies with the answer. Acha, did you write the journal entry? Yes. What is the journal entry you wrote? Cash account debit to? पक्का? सबने ये एंट्री लिखी? सो पहले मैं भी लिख लेता हूँ, चलो. It's cash account debit to. Amount 10,000 आएगी. It will be 18,000.
अच्छा, हैज एनीबॉडी रिटन दिस इफेक्ट? कितनों ने लिखी है? इफेक्ट लिख डाली। जानी कैश इंक्रीज, वेरी गुड। પછી गुड्स डिक्रीज, वेरी गुड। गुड्स डिक्रीज અને प्रॉफिट इंक्रीज, बहुत बढ़िया बेटा। कितनों ने ऐसा लिख दिया था? कैश इंक्रीज, गुड्स डिक्रीज and profit also increases. But based on this, will you show the effect on the right side? Yes. Come on, try. Can I say Jasleen? But Jassi the same Lassi? Yes. 55,000. But bank balance any change? 20,000 as बेटा कैश है मेरा 30,000। सो ऐसा यहां पर लिखा है कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कितने से प्लस करूं? तो यहां पर तुमने सामान बेचा 18,000 का, सो यहां पर हो जाएगा 48। बेटा गुड्स आले के गेले, बेटा गुड्स आले के गेले, गुड्स आर टोटल 35। कितने गेले? 10 के 18, 10, 25,000। तो ये कैश इंक्रीज, गुड डिक्रीज हमने लिखा दिया। टोटल हो रहा है 1,48,000। फिर यहां पर लिखा बेटा प्रॉफिट इंक्रीजेस। प्रॉफिट किसको? ओनर को। 1,00,000 प्लस प्रॉफिट 8,000, सो 1,08,000। क्या से हीप की मानी आ रही है? Same 48। But can I say Himani will be the same? No change in that, 40,000। So बेटा जो प्रॉफिट इंक्रीज है, उसकी भी हमने इफेक्ट लिख दी। बेटा is LHS is equal to RHS? बेटा LHS is equal to RHS? Yes. I try to draw the line. बेटा આપણો પેજ પતી ગયો છે, એટલે આ રફ કરીને આ વાળો છેલ્લો ટ્રાન્ઝેક્શન રફ નથી કરતો, અહીંયાથી હવે ઇફેક્ટ ઉપર લખવાની ચાલુ કરી દઈશ। તમને ખબર પડશે ને? સર कॉपी मारनी ना, बोलो ना यार, कहां से मारनी? नीचे ऊपर अपने कर लेंगे। अब ऐसा टेंशन मत लिया करो हमारा। बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन में अपना बैलेंस कितना है? 1,48,000। But the next one you can try on your own. It's a very simple transaction. Come on, give me the journal entry. Goods of 2,000 returned to Himani. Pravik. Himani account debit to? सही बेटा, सही है। लोगों की बात का ध्यान रखना, सही है। क्या है? हिमानी अकाउंट डेबिट टू, लिखो, सही है। बेटा प्रवेक, तुम्हारी स्पीड से ये लोग एडजस्ट नहीं हो पाए, इसीलिए वो हंस रहे तुम पे। बाकी मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि I can also go to that speed। हिमानी अकाउंट डेबिट टू परचेज, अमाउंट कितनी है?
2000। बड़े शाबाश। इफेक्ट जो सोच के बताएगा चॉकलेट मिलेगी उसको। इफेक्ट सोच के बताओ। इफेक्ट विश्वजीत, गुड्स इंक्रीज, गुड्स डिक्रीज है। नक्की कर ले, क्यों डिक्रीज है? वेरी गुड, एक इफेक्ट बराबर है, गुड्स डिक्रीज होंगे। फिर क्यों लायबिलिटी डिक्रीज होगी? बहुत बढ़िया। वो जो बोल रहा है द इफेक्ट इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ जरा ध्यान, ट्रांजैक्शन नंबर 3 पर देखो। जब हमने हिमानी से परचेज करा था तब ऐसा लिखा था लायबिलिटी इंक्रीज, मतलब मेरे को उसको पैसे देने के थे, लेकिन अभी उतने के 2000 के गुड्स अगर मैंने उसको वापस दे दिए तो अब मैं 2000 उसे नहीं दूंगा ना। सो लायबिलिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। हमने हिमानी को गुड्स रिटर्न कर दिए तो अब उसका पैसा हम उसको देंगे। सो लायबिलिटी डिक्रीज हमें, गुड्स आल्सो डिक्रीज। तो गुड्स जो डिक्रीज करना है उसमें बेटा जसलीन इज द सेम 55, बैंक बैलेंस सेम, कैश 48 सेम, गुड्स कैन आई से इट्स डिक्रीजिंग। तो 25,000 में से परचेज रिटर्न माइनस करा 2000, सो 23,000। तो बड़ा गुड्स डिक्रीज की इफेक्ट मैंने दे दी। यहां टोटल हो जा रहा है 1,46,000। कैपिटल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो 1,08,000 एज इट इज। हिमानी को फर्क पड़ रहा है बेटा, उससे हम उतने पैसे, there is a purchase return of 2,000, so 38. बेटा 146, 108 and 38 is again 146. LHS is equal to RHS, so we can draw the line. LHS is equal to RHS, we can draw the line. बस चलो, हाँ चलो चलो। Beta, read the last one. Goods of 4,000 is returned by Jasleen. बेटा जसलीन ने रिटर्न मारा है। हाँ पूर्वा, नो बाउसर Yeah, it will be sales return account debit to, लिखो बेटा, एंट्री मारो रे। Sales return account debit to Jasleen। अमाउंट कितनी बेटा? अमाउंट 4,000। बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जसलीन 4,000। इफेक्ट बताओ, इफेक्ट क्या आएगी? सेल्स रिटर्न टू जसलीन। अनिकेत, डेटा डिक्रीज, गुड्स इंक्रीज। बेटा ही सेज गुड्स इंक्रीज, नहीं, कैसे गुड्स इंक्रीज? जो सामान बेचे थे वो रिटर्न मार रहे हैं,
वो रिटर्न मार रहे हैं। सो गुड्स इंक्रीज। बेटा जसलीन आंटी को देखो फिफ्थ वाले में देखा था, वो अपनी कौन थी, मतलब मुझे उनसे पैसे लेने थे, लेकिन जसलीन आंटी ने 4000 का सामान अगर रिटर्न कर दिया तो अब वो उतने पैसे देगी। सो माय डेटर डिक्रीज। Let's give the effect. Let's give the effect. Jasleen is 55,000. उसमें से उसने सेल्स रिटर्न करा 4000 का, तो उससे अब हम 51,000 लेंगे। Can I say bank balance will remain same 20,000. Cash balance will remain same 48. Goods 23,000 थे। सेल्स रिटर्न की वजह से गुड्स हैज इंक्रीज्ड 27,000 वो हो गए। तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों असेट्स में ही आ गए। वापस बेटा टोटल 1,46,000 हो रहा है। चेक्स करो। कैपिटल 1,08,000। अरे हिमानी आंटी 38 पर है। Asset is equal to capital plus liability. It is getting tallied. LHS equal to RHS. बड़ा चैप्टर कैसा लग रहा है? बेटा वो पाप के घड़े भर रहे हैं ना, वो तकलीफ है। बाकी यहाँ तक अगर खाली लिखना हो तो आराम से हो, लेकिन ये वाली वाला राइट हैंड साइड वाला तकलीफ है। बेटा शांति शांति तुम्हें क्या करना है जरा यहाँ ध्यान। घर जाके आज तुम्हें होमवर्क में क्या करना है, यू नीड टू डू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, दैट इज फ्रॉम ट्रांजैक्शन नंबर 9 से लेके 19 तक सबकी तुम्हें जर्नल एंट्री लिख के आनी है, प्लस ये इफेक्ट लिख के आनी है। इफेक्ट भी मैं क्या करवाऊंगा, असेट लायबिलिटी कैपिटल में उसे कैसे बताने का वो मैं बताऊंगा। Are you getting it? Yes.